Hello. चलो, one person is here. Two people are here. क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Hello. अब आ रही है सर. चलो. Alexander Graham Bell हो गया. Okay. तो कहाँ रखा जाए? इरेजर. Cool. मैं तब से बातें कर रहा हूँ कि अरे भाई सन्नाटा क्यों? 9:30 हो गया. हे भगवान. Oh my God. ठीक है गाइस. अच्छा, अली इस लेक्चर में नहीं है तो प्लीज मुझे भी हर बैच में कोई एक लड़का चाहिए जो फर्जी चिल्लाता रहता है. ओके. अच्छा लगता है मुझको. प्लीज somebody volunteer to become a person who just talks a lot. Okay. मैच लगवा लगवा दो बैकग्राउंड. शोर होता रहे. कियोस अच्छा लगता है मेरे को. तो क्या चाहिए बताओ. रिकर्जन. चूज योर वेपन. डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फिर मैथ्स. क्या चाहिए? तीसरा वाला सर. एक वोट मिला इसको. एनीबडी एल्स? लॉटरी कर लो. वही कह रहा हूँ मैं डेमोक्रेसी है ब्रो. लॉटरी नहीं करूँगा. डेमोक्रेसी. हर कोई वोट करो. रिकर्जन, डीपी या मैथ्स. I mean, this is rarely asked in interviews,
तो कोई मैथ्स नहीं पूछता वहाँ पे. मैथ्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एल्स. वही तो है ना सर, उसको समझेंगे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व बात कर सही है. पाएंगे ना जल्दी। ठीक है. रौनक ने वोट दिया टीपी को, कानून ने वोट दिया मैथ्स को, और दोनों के बीच में टाई है. एनीबडी एल्स जस्ट गिव वन मोर वोट और उसका चल. अच्छा रिकर्जन भी दिया है किसी ने, शुभांकन. रिकर्जन. अभिषेक ने भी कर दिया डीपी. ओके डीपी जीत गया इलेक्शन. नाउ व्हाट आई विल डू, अब डीपी में मैथ्स को इनकॉर्पोरेट कर लूंगा. अब तुम लोग को पता है डीपी में रिकर्जन तो यूज ही होता है. सॉरी. सर हाँ एक ही पार्टी का 3 बंदे खड़ा करके चुनाव किसी की भी जिता दिए। हाँ एग्जैक्टली. हाँ. इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। यही डेमोक्रेसी है, डेवलपिंग कंट्री में यही डेमोक्रेसी है. ओके सो चलो. सो एक लेट्स से स्ट्रिंग है, ठीक है. इसके कितने सब स्ट्रिंग बन सकते हैं टोटल? हाउ मेनी सब स्ट्रिंग्स? सॉरी, अगर किसी को मतलब only English if they want, they can just text me in the chat or just open their mic and shout at my face, stop using Hindi. Okay. Like naturally Hindi comes out, but just let me know. Okay. So what do you guys want? What do you guys want? How many strings, sub strings this string can make? Okay, Shivankar says 8. कुछ hint दोगे? Why 8? अभिषेक ने एक बढ़ा दिया, 9 कर दिया. 8 सही है, but why 8? How 8? अच्छा बगल में था 9 का. Okay. So just like you can notice over here that 2 to the power 3, but why 2 to the power 3? 2 to the power 3 is 8, that is correct, that there are 2 to the power 3 substrings that we can make. And substring भी नहीं, we can substring कहेंगे उसको, AC subsequence कहेंगे. हाँ, how many subsequence you can make? So yep. So what I was saying, 2 to the power 3 is 8. Now the thing is why the 8 comes, there are 3 characters. So in your subsequence you can just choose either I'll take A or I'll leave A. Okay, so I have 2 choices for the character A. Either I'll take it in the subsequence or I'll leave it in the subsequence. So there are 2 choices. Depending on the choice for A, I have 2 choices for B. Okay, so 2 choices are for B, either I take B or I leave B. Similarly for C also, either I take C or I leave C. So there are 2 choices for that also. So if I multiply these 3, that is 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the power 3, that is 8. If I just enumerate all the subsequences, that is also pretty easy. If I have A, B, C, so first I'll decide either I'll take A or I'll ignore A. Okay. Now A is decided on this level. Now I'll see if I take A, either I take B or I ignore B. Either I take B or I ignore B. Okay. So this level was for A. This level I decided what I should do for B. And for each option over here, I have 2 options for C. Either I take C or I leave C. Either I take C or I leave C. So ये leave करना था. Either I take C over here or leave C, take C or leave C. Okay. And if I just go through all my choices, I can see there is one subsequence. Okay, ABC is present in ABC. Then AB is also there. A blank C, that means AC. Sorry. A blank C is AC. A blank blank is A. Blank BC is BC. Blank B blank is B. Blank blank C is C, and blank 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 matlab nothing. Okay, we can ignore this one. So I want to generate something like this. Okay, I want to generate something like this. So let me just formulate my question. ऐसा है क्या? Oh हाँ, send chat
यहाँ पे सेटिंग होती है ना, होस्ट एंड को होस्ट। ओके, चैट की सेटिंग गलत थी, बहुत दिनों बाद यूज किया ना भाई, भूल गया था, सॉरी। मतलब ऑलरेडी वो सेट रहता था हमेशा। ओके, so 2 to the power 3 8, so this is what I want to generate all the string subsequence जो कहना चाहो उसको, ठीक है। so what should I do for that? क्या किया जाएगा इस, बताओ। सॉर्ट ऑफ अपने को पावर सेट जनरेट करना है ना। सो इसको पावर सेट कहते हैं। ओके गाइस, इफ देयर इज अ सेट, लेट्स से 1 2 and 3, 3 numbers are in a set। ओके गाइस, प्लीज कोई कुछ बोलो ना, अजीब लग रहा है मेरे। गुड इवनिंग ही कर दो यार, जय श्री राम चिल्ला जी दो। सर, जी हाँ, सर, चलिए सही मैं ही है। बता रहा हूँ। हाँ, कोई कुछ ना कुछ बोलते रहो यार, मैं बड़ा सन्नाटा अजीब लगता है। हाँ, so 1 2 3 is there। okay, so in this set the power set is how many elements are there, like the correct definition will be like the set of all subsets of this set is called a power set। but power set का मतलब ये होता है a set of all subsets, मतलब इसके subset बनाने हैं। okay, so I can either take one or leave one, take two, okay, take three, after that I can take 1 2 1 2 and then 2 3 2 3 and 1 3 1 3 and then 1 2 3 1 2 3। okay, so as you can see, बस abc की जगह I have written 1 2 3। okay, so there are how many subsets are there? 1 2 3 4 5 6 7, and the last subset will be that when I choose that I am not taking any of this, the empty set is also there। okay, this is mathematical representation, ignore this। The thing that I want from you guys is, if there is a word given, I want to generate the power set। okay, so CAB will also have the same thing like ABC। okay, I want lexico, wow, lexico बोलो, lexo लिखती है, हाँ, lexicographical subsets। anybody knows what this words mean? This word means, तो पता, डिक्शनरी ऐसे लिखते हैं lexicographical order, like all the words with A will be before B and then C, like it is in a sorted order। okay, and like ant will be before apple। okay, why Got ant, it, sir. why ant is before apple? Because Because N comes before B. okay, and comes before p, so this is sorted in some way, that is called lexicography। okay, cool, so I want subsets in lexicographical order। any idea guys how to solve this? I hope the question is clear। okay, so CAB is there, so I want to generate here also all the subsets A B C A B B C C A and then ABC। ठीक है, सारे सबसेट चाहिए। what should we do? hmm ये इतना शांत क्यों है दुनिया? ओके ओके ओके, what I was saying, can anybody just tell me like what is the part that is unclear या फिर नहीं समझ में आ रहा है? then also it is okay। I'm right now not asking for code, I'm asking for some algorithm, कैसे generate कर सकते हैं। तो ओके, अचानक से 12 से अटेंडेंस फिर 9 हो गई। आई होप पीपल आर प्रीटी क्वाइट। नए बैच के साथ फायदा होता है, पीपल शाउट अ लॉट। पुराने लड़के आई डोंट रिमेम्बर मेनी पीपल, चलो होगा कुछ।
Okay, what I was saying was, can anybody tell me subsets of this word? Lexicographical subsets. I'm not asking for the algorithm. I'm just asking subsets. You can write in the chat also. Okay. 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 Ronak is here. अच्छा chat में लिख रहा था मैं. Sorry, chat बंद हो गया. Okay. 2 pointers. 2 pointers. नहीं. DP यूज करना है तो अपने को कुछ करना पड़ेगा. Recursive. Okay. Recursion is not compulsory for dynamic programming, but mostly we can do that. Okay. Top-down approach में we can use recursion, but that is one thing. हाँ, like that, Ronak. So क्या किया जाए? First of all, to generate the subsets which are in lexicographical order, इसको sort कर देते हैं, ठीक है? तो M comes before U as far as I remember. L, M, then U. So the word becomes this. है ना? If I sort all the characters, this will happen. है ना? First A, then L, then M, then U. Okay. How can I do this if you guys remember Python? Even if you don't remember, you can like use normal sorted function and it will sort this thing. Okay. You can pass this string into this, and the thing is sorted function returns a list. है ना? It will return ALMU, but it will return it like this: A, L, M, and U. So what I can do is to make this a string. Can anybody tell me what function should I use? Exactly. Okay, join function we'll use. So I can put a empty space, nothing over here, some nothing dot join. Okay, and inside join I can put this sorted this. Cool. When I pass this string over here, this thing will give me in sorted order. Now I can just generate the subsets of this thing and it will be lexicographically sorted subsets or on its own. Okay, lexicography की चिंता नहीं करनी है. Okay, that got taken care by the sorted function. Now what we need to do, either I take A or I leave A, something like that. इस तरह के decisions लेंगे. So how many subsets will be there? For this word, how many subsets will be there? I'm not going to write all of them क्योंकि थोड़े ज़्यादा से. Four letters are there, and for each letter I have two choices. Either I take that letter or I leave that letter. So how many subsets will be there? Exactly. Okay, 2 to the power 416. So 4 characters are there. Either I can take A or leave A, take L or leave L, take M or leave L, or take U and leave U. So I have 2 options for each character. In total, I'll get a 16. Badhiya? Cool. So that is it. Now, I just need a function that will generate subsequences. I can use a for loop and iteration and all the stuff. It becomes easier if I write a recursive function. Chicken nuggets. Wait for them. It was very hot, sorry. Huh. Extremely sorry. So
what I can do for every character, either I want to take it or I want to ignore it. Let's code. ठीक है, बातें करने से ज्यादा अच्छा है कोड कर लेते हैं. आई फॉरगॉट किस में कोड करता था मैं. जुपिटर में. अच्छा वीएस कोड था. हाँ, यूज टू यूज वीएस कोड. आई ओके, ये क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. व्हाट इज दिस? ऐड टू ऑल फॉर सी इन सेट सी एफ एंड डी. चलो बढ़िया. इफ लेंथ ऑफ सेट इज 0, क्या बात है. लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया आपने. ठीक है ठीक है, ये फंक्शन रन करके देखते हैं. भाई ने बनाया बहुत अच्छा. कानू जस्ट गिव मी अ कोड. खुद से किया है ना. चोरी वोरी नहीं अच्छी लगती मेरे को. जी सर. हम्म. ओके. अपने फोल्डर में फाइल सेव इट. क्या नाम दिया जाए इसको. बता. हो गया. क्वेश्चन क्या कर रहे थे. पावर सेट. लेट्स कॉल इट पावर सेट. पावर डॉट पाई. कानू ने कोड सेंड किया. थोड़ा सा सही कर देते हैं फॉर्मेटिंग. इफ दिस इज देयर रिटर्न दिस, अदरवाइज रिटर्न दिस. इस फंक्शन में ये हो रहा है. ओके. लेट्स कॉल दिस फंक्शन पावर सेट एंड लिस्ट लेगा. ये इनपुट क्या लेगा. लुक्स लाइक इट इज टेकिंग अ लिस्ट. लिस्ट. अ लिस्ट ऑफ लिस्ट. ये क्या है? देखो. सर एक वाई से लिस्ट टेक. लेंगे. चलो ठीक है, लिस्ट डालते हैं. स्ट्रिंग देखते हैं. स्ट्रिंग इट विल सपोर्ट और नॉट. ओके. इफ आई गिव एबीसी, सो रिटर्न जो भी करेगा आई विल जस्ट प्रिंट द होल थिंग. So, इस क्लास में क्या चल रहा है आजकल. यही एक्सप्रेस जेएस का चल रहा है सर. अच्छा, तुम लोग अभी रिएक्ट तक पहुंचे नहीं हो. हाँ. नहीं सर. व्हाट अबाउट नोड. नोट जेएस तो हो गया सर. ओके एक्सप्रेस जेएस का क्या कर रहे हो, वो लोग सब रिकैप करवा रहे हैं. ओके. गुड गुड गुड. सही है. क्या बदतमीजी है ये. क्या हरकत हो रही है. मजाक समझ रखा है. हाँ चला. कुछ तो हुआ है. कुछ हो गया है. हम्म, बनाया कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया. क्या बात है. इसको छोटा तो ज्वाइन लगा के सॉर्ट कर देते हैं. देन आउटपुट विल बी लेक्सिकोग्राफिकल. एंड इसको फर्क ही नहीं पड़ा लेक्सिकोग्राफी हो कि ना हो.
ओके सो आर दिस कोड इज जनरेटिंग पावर सेट, सही है, ओके, बट उस ऑर्डर में नहीं है, जैसे सर यही तो इंस्टेड ऑफ, आपको दिखता है, अब हमको बताएंगे, आगे समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो ये कानू का कोड है, पावर सेट फंक्शन कॉल करना है, we're supposed to pass a string in this thing, the length of the string is empty or it becomes empty because we are reducing the length of the string over here. तो फिर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट एम्प्टी लिस्ट लेके भाग जाएंगे आगे, बट अदरवाइज what am I doing is I'm taking the first character and leaving the first character, okay, so यहाँ पे है सिर्फ a और यहाँ पे है पहला कैरेक्टर छोड़ करके बाकी, यानी कि बी सी, ओके, यहाँ पे जी ओनली फर्स्ट कैरेक्टर इज देयर, यहाँ पे द यस होल सर, स्ट्रिंग इज देयर बट द फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट देयर। एक्सपेक्ट फर्स्ट करेक्टर। अब देखा जाए कि दिस इज सेंडिंग इन दिस फंक्शन, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ई और सेट है, ओके, ईच एलिमेंट वन बाय वन, हर कैरेक्टर वन बाय वन लो फॉर सी इन सेट सी डॉट अपेंड ई, क्या मतलब, क्या मतलब, अच्छा दिस इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, ओके, लिस्ट ऑफ लिस्ट का मतलब कि ऑलरेडी जब, चलो मान लेते हैं काफी कोड आगे चल चुका है और एक लिस्ट ऑफ लिस्ट जनरेट हो चुकी है, उसमें से हर एक लिस्ट को लेना है और उसमें ए को अपेंड कर देना है। हम्म, ठीक है, ये कोड समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, मेरे समझ में आ रहा है, बट द थिंग इज, चल समझाते हैं कोड कर क्या रहा है, ठीक है, कानू यहाँ पे थोड़ी सी मेमोरी बचा सकते थे, बता, सेम फंक्शन दो बार कॉल सर कर रहे नहीं, परसों ऐसे ही मैं देख रहा था क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन देख रहा था, हो। तो ऐसा मेरे को सोल्यूशन मिला था, आप पूछेंगे ऐसा मालूम नहीं था। हम्म, सही है, एक बार देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, ठीक है, पहले ये फंक्शन है, इसमें मेरे को स्ट्रिंग भेजना है, ओके, आई वाज गोइंग टू राइट सम अदर फंक्शन, बट चलो ये देखते हैं कैसे कर, ये हमारा पावर सेट फंक्शन, ओके, इसमें मैंने भेज दिया पूरी स्ट्रिंग एबीसी, इसने कॉल किया ऐड टू ऑल, कोई नाम फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, और ऐड टू ऑल में नहीं कॉल हो रहा है, यहाँ नहीं करते हैं, चलो ऐड टू ऑल इज अ डिफरेंट फंक्शन, ऐड टू ऑल, इसमें इसने सेंड किया पहला कैरेक्टर ए और पावर सेट ऑफ दिस सब स्ट्रिंग बी सी, ए हटा करके, तो दैट विल बी बी सी एंड बी सी, है ना, हम्म, and then it is making BA, CA and BCA, ये तीनों बना करके सेट को रिटर्न कर दो, एंड इन दैट ओके 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 ओके, ठीक है, सो ये पावर सेट सेंड किया ए दिस क्या नाम है इसका, ऐड टू ऑल, सो ए इसमें से निकाला, बीसी का पावर सेट बना लिया, समहाउ कैसे बना नहीं पता अभी, ओके, एंड बीसी में सब में ए डाल दिया, तो अब अपने पास बी ए हो गया, सी की जगह सी ए हो गया, बी सी की जगह बी सी ए हो गया, ओके, एंड सेम यही फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें आगे ऐड कर लो
ये पूरा सबसेट विदाउट ए, तो बी सी और बी सी, इसको ऐड करेंगे तो बस लिस्ट है, तो इट विल जस्ट गेट एडेड लाइक दिस। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, दो बचे हैं, दो मतलब एक बचा है ए। ए कहीं अपेंड कर रही है? हाँ, हर पावर सेट में एक सेट जो है जो एम्प्टी सेट भी है, तो इसमें कॉमा डाल के यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टी। ओके, एक देयर इज अ लिस्ट दैट इज एम्प्टी, उसमें जब मैंने अपेंड किया ए को, तो इट विल गिव मी जस्ट ए। सो दिस इज जनरेटिंग ऑल द सबसेट्स लाइक दिस। सो एनीबडी इफ दे वांट मी टू एक्सप्लेन कान्हूज कोड, क्योंकि ज्यादा सिंपल है। ओके, अदरवाइज मैं अपना भी कोड लिख सकता हूँ। ओके, अभिषेक इज सेइंग लाइन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है, दैट इज द हार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक को पावर सेट में भेजना है। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर इन दैट लिस्ट, 0th इंडेक्स को इग्नोर कर दो, फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स send that thing in the function power set. Okay, these guys are saying, this function is saying कि somehow it will generate the power set. Okay, let's see how it will work. So let's take a very small string a, b and c. Okay, in this, first of all they are sending अभिषेक, इस फंक्शन का काम समझ में आया? set is a list of list, ठीक है? so it looks something like this, एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है बी सी बी सी और एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है? दिस इज सेट, नाम अच्छा नहीं दिया ब्रो, ठीक है? आई मीन सेट तो कीवर्ड है ना पाइथन का, बट स्टिल यू कैन डू दैट, यू कैन गिव एनी नेम टू एनीथिंग, पाइथन का ये फ्रीडम है। नाउ अभिषेक, व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, इट इज टेकिंग ई, और ई को अपेंड कर दो हर एक एलिमेंट में यहाँ पे, ठीक है? बी ई सी ई बी सी ई, और एम्प्टी के साथ ई जोड़ेगा तो सिर्फ ई हो जाएगा। ई है क्या? ई है क्या? ई है पहला कैरेक्टर जो भी हमने यहाँ पे निकाला। ओके, एज यू कैन सी फॉर सी इन सेट, तो वन बाय वन इट इज टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम हियर। ओके, इट विल टेक द फर्स्ट एलिमेंट एज बी, फिर बी में अपेंड कर देगा ये कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर, ठीक है? ये एड टू ऑल फंक्शन का काम है, बट अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं हाउ एक्चुअली इट इज जनरेटिंग दिस थिंग, दिस फंक्शन इज जनरेटिंग दिस थिंग, ये कैसे हो रहा है देखते हैं। ओके, दैट इज हार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। लेट मी सी चैट। ओके, so this function is doing one function call and it's saying a, and एक फंक्शन है पावर सेट, उसके अंदर सेंड कर दो bc। ओके, फ्रॉम इंडेक्स 1 टिल द एंड, इंडेक्स 0 को अलग कर लो और इंडेक्स 1 से लेके एंड तक को पावर सेट फंक्शन में भेज दो। ओके, एंड दिस सबस्ट्रिंग, these two things are sent into a function called add to all। okay, now as soon as this function will be called, something else will happen। okay, what will happen? Power set bc, what will this do? In this power set bc there will be a line like this, power set function तो same ही है सबका, तो this line of bc will be run। इस कोड के अंदर एक लाइन है जिसपे लिखा है पहला कैरेक्टर लो जो 0th इंडेक्स पे है, ओके, बी, और सेकंड वाला जो है मतलब 1 से लेके एंड तक, यहाँ पे 1 से लेके एंड तक इज ओनली वन कैरेक्टर, इसको पावर सेट वाले फंक्शन में भेज दो। ठीक है, सी को हमने यहाँ भेज दिया। ओके, और जो भी ये रिटर्न आएगा उसको और बी को ऐड टू ऑल फंक्शन में भेज देंगे। बट बिफोर दिस फंक्शन इज कॉल्ड, दिस फंक्शन कॉल इज हैपनिंग। लेट्स सी इसमें क्या होगा। सो पावर सेट फंक्शन एंड इनपुट इज जस्ट वन कैरेक्टर सी। अब सी की लेंथ 0 नहीं है तो अभी तक ये चला नहीं है, फिर ये लाइन कॉल होगी इसके लिए भी। इसके अंदर एक लाइन है
पहला 0th कैरेक्टर लो, दैट इज C, कॉमा 1 से लेके एंड तक। तो 1 पे क्या है? नथिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो दिस विल बी नन। पावर सेट में नन भेज देंगे 1 से लेके एंड तक, बट 1 तो है नहीं, ओनली 1 कैरेक्टर इज देयर, दैट इज ऑन द 0th इंडेक्स, वो निकाल के अलग कर लिया। एंड पावर सेट फंक्शन में मैंने एक एम्प्टी सेट भेज दिया। ठीक है, whatever output will come, I'll pass to the function a to a. ठीक है, add to all. Now the thing is, in this function call, this condition will become true, and this meets the base condition, है ना guys? जब पावर सेट में हमने empty string भेजा है तो उसकी लेंथ है 0, then I will be returned with a list of list. ठीक है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यानी कि एक लिस्ट है और इसके अंदर एक लिस्ट है। ठीक है, so this will be my list of list. Okay, and add to all फंक्शन में हम ये दो चीज भेज रहे हैं, and there is one more thing, this power set is also incorporated with that. ठीक है, add to all will return a list, तो लिस्ट में प्लस करो, अगर ए बी सी एक लिस्ट है, 1 2 3 एक लिस्ट है, अगर इसमें प्लस कर दो तो ए बी सी 1 2 3 एक लिस्ट बन जाती है। ओके, सारे एलिमेंट एक ही लिस्ट में आ जाते हैं। सो एवरीवेयर यहाँ पे पावर सेट बी सी है तो देयर इज अ प्लस पावर सेट बी सी। ओके, यहाँ पे पावर सेट सी है तो देयर विल बी अ प्लस पावर सेट सी, और यहाँ पे पावर सेट एम्प्टी था तो यहाँ पे पावर सेट एम्प्टी अपने को ये दे रहा है, तो यहाँ एग्जैक्टली एक चीज यहाँ पे रहेगी। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? एड टू ऑल क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एड टू ऑल विल टेक दिस, ओके, इसका नाम है सेट, फॉर ईच कैरेक्टर फॉर आई इन सेट, ओके, I'll take that character whatever is there and append this thing inside that. Okay, so एक चीज बताओ मेरे को, what is the first character in this list? इस लिस्ट में क्या एलिमेंट है? Let me see the chat window. Abhishek is replying over there. बताओ guys, this is a list और इसमें एक ही एलिमेंट है, that is a empty list. Okay, that is allowed in Python, in JavaScript also, but still हाँ। So I क्या हुआ? इस लिस्ट का पहला एलिमेंट, I will be a empty list. Okay, I में हमने अपेंड कर दिया this thing, the character that I passed. I'll append C in it. Okay, so empty list में मैंने C अपेंड कर दिया तो ये बन गया। Okay, and this is the thing that I'm returning. मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे। Cool, तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, एक ही एलिमेंट तो लूप एक ही बार में खत्म हो गया। ठीक है, सीधा सी हमने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, वहां पे आ गया एक लिस्ट जिसके अंदर एक एलिमेंट है सी। ओके, उसका हमने प्लस किया और ये कर दिया, एम्प्टी लिस्ट उसमें ऐड कर दी। तो यानी कि जहां पे हम ये फंक्शन कॉल कर रहे थे पी सी पावर सेट ऑफ सी, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे अब एक लिस्ट है जिसमें पहला एलिमेंट है सी एंड द सेकेंड एलिमेंट, अगर मैं एक लिस्ट और दूसरी लिस्ट को प्लस करूं तो ये दोनों एलिमेंट एक ही लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सी एंड एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, कानून ने एक्चुअली जो कोड लिखा है दैट इज गिविंग एग्जैक्टली टू द पावर 3 8 एलिमेंट्स इन द सबसेट। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि देयर इज अ एम्प्टी एलिमेंट आल्सो, बट कानून ने उसको लिया, मेरे को चाहिए नहीं था। यू कैन डू दैट। ओके सर उसको है ना, जो पाइथन ट्यूटर का ये रहता है ना, उसमें मैं ट्राई रन करके समझ लिया था, लेकिन इतना खास भी समझ में नहीं आया था। तो तुम कह रहे हो कि मैं फाड़ू आदमी हूँ? आप समझा दिए सर। और ओके,
अभिषेक समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ओके, मैं भी समझने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे ही समझ में आता है। तोड़ दो कोड को, एकदम बेसिक ले जाओ, क्या ही हो रहा होगा अंदर। ओके, सो ये एक सेट है। ओके, एक लिस्ट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक सी है और एक एम्प्टी लिस्ट है। अब ए टू ए फंक्शन क्या करेगा, इस सेट को लेगा फॉर आई इन सेट। ओके, हर एलिमेंट में ये अपेंड कर देगा बी। तो पहले लेगा सी को, सी को में अपेंड कर देगा बी, फिर लेगा एक एम्प्टी लिस्ट और उसमें अपेंड कर देगा बी। एम्प्टी लिस्ट में बी अपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, बी बनेगा, है ना? ठीक है, फिर इसको ये जो बनाया इसने अपेंड करके बनाया, ठीक है, फिर आफ्टर दैट इट विल जस्ट रिटर्न दैट सेट। तो ये जो इसने बनाया इसको रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ फंक्शन कॉल जो हो रहा था यहाँ पे अब आ जाएगा, और यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये पूरा फंक्शन कॉल खत्म हुआ है ना। तो ओवर हियर आई विल गेट अ सी बी एंड अ बी। ओके, एंड पावर सेट ऑफ सी, ये क्या था, ये तो अभी इसने रिटर्न किया था। पावर सेट ऑफ सी वाज सी एंड अ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे एक सी और एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, सो प्लस करने का मतलब होता है बस अपेंड कर देना। ओके, कॉमा लगा दो। ठीक है, तो सी बी बी सी और एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। नाउ दिस इज अ लिस्ट जिसके अंदर एक लिस्ट में ये एलिमेंट्स हैं, एक लिस्ट में ये एलिमेंट है। वन लिस्ट इज दिस वन एंड द लास्ट लिस्ट इज दिस। ओके, this is the result of this function. Wherever this function was getting called, this will be returned. Okay, so if I see over here I was calling this function, so instead of this I can write there is a list that has cb comma b comma c comma empty list. ठीक है, so this is this function. Okay, and this function and this function are the same thing, तो दोनों एकदम सेम है। पहले ऐसे लिख दो दोनों को, cb b c and empty list। ठीक है, बट इन दोनों को प्लस नहीं करना है बिकॉज दिस इज अ पैरामीटर दैट विल बी पास्ड इन दिस फंक्शन। तो ये लिस्ट और एक ए पास कर देंगे अपन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, सेम कोड फॉर आई इन सेट, हर एक एलिमेंट को लेगा बारी बारी, एंड इन ईच एलिमेंट इट विल अपेंड ए। तो सी बी में ए, बी में ए, सी में ए, एम्प्टी लिस्ट में ए। ठीक है, एक लिस्ट बना दी इसने, और इसमें हम इन दी एंड प्लस कर देंगे ये वाली चीज। ठीक है, तो इसमें प्लस करने का मतलब है कि बस अपेंड कर देना। तो सी बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एम्प्टी लिस्ट, इन दोनों का अगर मैंने प्लस कर दिया तो यानी कि इसको हटाओ और एक कॉमा लगा दो। एग्जैक्टली यही आउटपुट होना चाहिए भाई का। सी बी ए एंड देन बी ए सी ए बी ए सी ए, फिर सी सी बी सी और एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, सारे सबसेट जनरेट कर दिए। समझ में आया अभिषेक? टू टू द पावर 8 - 1 भी कर सकते हैं। हाँ, अरे इन द एंड जो भी रिटर्न हो रहा है उसमें से निकाल दो एलिमेंट जिसकी लेंथ 0 है। ठीक है, यू कैन डू दैट। या फिर एज सून एज द लेंथ बिकम 0, लिस्ट ऑफ लिस्ट तो जनरेट कर रहे हैं, बट जहां पे लास्ट में जहां से ये आ रहा है एम्प्टी लिस्ट वाला लौंडा, इसको हटाना है बस। यू कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन एम्प्टी लिस्ट को हटा दोगे फिर एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कैसे करेगा? सो दैट विल बी बेटर इफ यू रिमूव द एम्प्टी लिस्ट इन द एंड। ओके, एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। सो दिस वाज अ रिकर्सिव क्वेश्चन, बट ये वो नहीं कर रहा है जो अपने को चाहिए था। ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा है, सबसेट जनरेट कर रहा है बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कर रहा है, ये अपने मर्जी से कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है मेनली बिकॉज अपन एंड तक पहले जा रहे हैं। ओके, हमारा फंक्शन पहले पहुंच रहा है यहाँ पे और यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट हो रहा है। तो सी सबसे पहले जो है आ रहा है, हम रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कर रहे हैं। इफ आई सॉर्ट द रिजल्ट, लेट्स से
मैं चेक कर रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं। अगर मैं सॉर्ट कर दूं, विल दिस वर्क और नॉट? अरे सॉर्टेड ऐसे चलता है, सॉर्ट सॉरी, वेस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। देन आई हैव प्रिंट रेस मींस रिजल्ट। आई थिंक नहीं नहीं, बी था, ऐसा क्यों किया इसमें? बी ए क्यों किया, ए बी क्यों नहीं? डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें? अभी उसको वहां पे सी ए भी रिटर्न इन द एंड में इसको सॉर्ट कर रहा हूँ तो आई कैन डू वन थिंग। लंबा रास्ता है बट अब मन कर रहा है रिजल्ट का, फॉर आई इन रिजल्ट, आई को कर दूंगा मैं सॉर्ट क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता। अब हो गया। हम्म, थिंक सो। हम्म, ओके। सारे रिजल्ट सॉर्टेड है तो एक एक एलिमेंट के अंदर जाकर के मैंने इस लिस्ट को सॉर्ट किया, फिर इसको किया, इसको किया, इसको किया। सो दैट इज ऑल्सो वन वे टू डू इट, ठीक है। तो कान्हू के कोड में ये एक लाइन कोड लिख दिया मैंने तो नेता बन गया मैं। मेरा कोड थोड़ा सा रिकर्सिवली मैंने एक कोड लिखा था जो यही काम करता है, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज सेम। ओके, कूल। चलो पॉज लेते हैं थोड़ा, ठीक है। वैसे 40 मिनट्स हुआ है बात करते हुए, बिकॉज 9:30 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ था। एमसीक्यू देते हैं लोग इस सैटरडे वाले लेक्चर में, एक्स्ट्रा क्लास में? एक्स्ट्रा क्लास में तो नहीं, लेकिन आज तो सैटरडे भी नहीं है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट किया है ना, फिर भी मैं एमसीक्यू दे डाल रहा हूँ। दीजिए, ओके, दे दीजिए सर। देख रहा हूँ कि इस कोड में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, 3 minutes should be enough. Okay. सही है। ओके ओके, MCQ 1 डाला है मैंने, सॉल्व करो गाइस। देखो MCQ डाल देते हैं, क्या पूछे इसमें। ओके, 3 minutes of this also. Hmm. Okay. Guys, MCQ 1 is there, सॉल्व करो।
10 को मैंने सॉल्व कर लिया, क्या बात है। लेट मी सी द चैट। सही है यार, पानी। ओके 44 सेकंड मीनिंग, एक और एमसीक्यू डाल रहा हूँ मैं। ओके गाइस टेल मी वन थिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो पढ़ा है तुम लोगों ने? ग्रीडी एल्गोरिदम पढ़ा है? यू गाइस नो व्हाट इज ग्रीडी एल्गोरिदम? कम से कम कोई लोग एक माइक और एक स्पीकर ऑन छोड़ दिया करो ताकि मुझे अपनी आवाज सुनाई दे जाए। 13 पीपल अटेम्प्टेड, हे भगवान। 6 लोग प्रॉक्सी हैं लग क्लास गया, में। प्रॉक्सी लग गया, क्या लग गया? क्या क्या क्या, क्या कह रहे प्रॉक्सी लगाते हैं इसे बोलते हैं। हो? अच्छा प्रॉक्सी। क्लास में 6 लोग हैं, डबल से ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया एमसीक्यू। सही है सही है। ए इसी बैच में वो था ना मुस्ताफिजुर? जी सर। यही बैच था ना? सही यार, तुम लोग का बैच सबसे सही है। तुम लोग का इन द सेंस की जितने भी अब नए बैच आएंगे उनको पाइथन नहीं सिखाना है। कई बच्चों की हालत खराब होगी बट कोई बात नहीं, मैं हूँ। उनको जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा मैं। सर जावास्क्रिप्ट। इसमें उसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना? पाइथन और जावास्क्रिप्ट में नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं ना फोर लोग, पोर्टल सेम है, वो डिफरेंट वो होगा। सारे के सारे तो सेम ही है ना? हाँ वो सब सेम है, बस उनका कोर्स ड्यूरेशन डिफरेंट है, फीस डिफरेंट है। आईएसए नहीं है उसमें, तो उनको फीस देना पड़ेगा पहले। पहले देना पड़ेगा? यस। सही है यार, सही है, बात मानो। फिर भी हम लोग का भी वैसे ही इजी नहीं है, बाद तुम में लोग का फीस देते फाइनेंशियली हैं। आसान है, फाइनेंशियली इजी है तुम लोग के लिए आईएसए वाला। बट तुम लोग को मतलब पाइथन एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग को पाइथन भी सिखाया गया है। 12 तो मंथ का उसमें से कोर्स है। पैकेज भी कम कर दिए ना? पैकेज कम किया मतलब? मतलब हम लोग का सेट किए 5 LPA का, वहाँ पे कम कर दिए ना? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे एलपीए मेंशन ही नहीं किया, वहाँ पे कहा जॉब दिलाएंगे आपको पठान की नहीं जुबान। किया है, 3 LPA और देखते हैं। वेबसाइट पे देख। यहाँ पे बस लिख दिया एवरेज सैलरी कितनी रहती है, सैलरी पे कोई दूसरा लिमिट नहीं कुछ? लगा है। कहीं और भी है। पता है आईएसए बहुत लोग ने स्टार्ट किया था, पेस्टो था एक, और मसाई स्कूल, और एक और कोई था, नाम भूलिए उसका। कोड निंजा कोड निंजा में है आईएसए? है। धीरे धीरे मिडिल सबने स्कूल हटा भी दिया, है। धीरे नहीं, धीरे अभी सबने हटा दिया। अभी तो यूट्यूब पे ऐड आया था कोड निंजा का, वो भी बता रहा था। तो अब आईएसए डाल लें, फिर वो भी हटाएंगे। एक्चुअली ये है ना कि आई पर्सनली नो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब बताया नहीं, जॉब लगे फिर बताया नहीं, तो फिर लीगल केस करना और ये सब करना इज एक्चुअली प्रिटी, अपने स्टूडेंट्स पे केस करना साउंड्स बैड ना। ओके कूल। लेकिन लेकिन सर ये तो इसका अटेन्यू का प्लेसमेंट होगा ना? हाँ तो अटेन्यू को तो पता चल ही जाएगा ना कहीं से। कई लड़के बाहर भी अप्लाई करते हैं ना, देखो आते हैं तो कोई नॉलेज नहीं रहती है, फिर उसके बाद अच्छी खासी जब नॉलेज हो जी जाती है फिर लड़के अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन वही अप्लाई करते हैं बाहर और अच्छी जॉब पकड़ लेते हैं बच्चे जो मतलब यूजुअली सैटरडे वाले क्लासेस में आते हैं। मैंने देखा है अगर तुम्हें इस कोर्स से अगर जॉब चाहिए तो होमवर्क कभी नहीं छोड़ना। होमवर्क में इतने डाउट्स मिलेंगे
जो प्रैक्टिस बनती है ना, तो ये चीज बहुत अच्छी की है टेन यूनियन। इन द नेक्स्ट बैग इट्स कंपल्सरी लाइक 80% यूल हैव टू लाइक वो होना चाहिए होमवर्क 80%। इब्रार इज सिंह 12 मंथ का कोर्स कर दिया है अब। 12 मंथ्स का नहीं है ब्रो, 5 मंथ्स का है बस। अभी हम लोग को भी सीसी असाइनमेंट सबमिट करना मैंडेटरी कर दिया, कॉल करके वही, इंडिविजुअल बता रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। मैंने खुद मतलब रिकमेंड किया था कि अगर लड़के सीसी करेंगे ना तभी डाउट आएगा, तभी क्लास में आएंगे डाउट पूछेंगे। बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि क्लास में सबको समझ में आता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम अहमद भाई अब जैसे तुमने कोड दिया उसको पूरा फाड़ दिया, तब समझ में आने लगा। बट बच्चे खुद से जब ट्राई नहीं करते हैं तो वो इशू हो जाता है, तब कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि क्लास में तो सब समझ में आ रहा है, खुद से कर नहीं पा रहे हैं। तो जब आदमी असाइनमेंट करेगा तब अभी उसको तो ज्यादा सर नॉलेज बेस्ट है। ट्रांसफर में ले लिया। हम्म। बैच ट्रांसफर का पता नहीं क्या है, चलो होगा। आओ एक तभी मैंने क्वेश्चन। बेस्ट ट्रांसफर लिया था। नहीं, हाँ मैंने तब लिया था इसलिए कि क्लास में समझ में आता है और बाद में कुछ नहीं आता है। हाँ, वो मेन यही है कि होमवर्क सीसी में थोड़ा पीछे रह गए होगे। अमर के साथ तो ये था, अमर ने इसीलिए उसने तो कुछ नहीं अटेम्प्ट किया था। अमर गया कहाँ, बातें बहुत करता है लड़का, गायब हो गया। कानू तुमसे तो बात करता होगा। टाटा बेस में नहीं है वो। टाटा में था बट प्रोजेक्ट डेमो सेशन एक भी नहीं उसने अटेंड किया, हो सकता है फिर फ्रंट एंड में आ गया हो। ऐसे चलो कैसे एक सर? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट डेमो उसने अटेंड नहीं किया था, मैं पढ़ा रहा था प्रोजेक्ट डेमो, उस टाइम नहीं था वो किसी भी लेक्चर में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज 01 knapsack प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, बहुत इंटरव्यू में आता है, अंधाधुन आता है। ठीक है, CLRS वगैरह में मतलब these are the questions which are used to explain dynamic programming। ठीक है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है। नैपसैक क्या होता है? नैपसैक, नैपसैक कह दो एक झोला है। ओके, इट इज अ बैग और इट हैज अ कैपेसिटी। कैन आई मेक अ शेप? यप, इट इज अ बैग या बॉक्स। ओके, बैग होता है वैसे, लेट्स से इट इज अ बॉक्स, इट हैज सम कैपेसिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसकी कैपेसिटी है 50 kg। ओके, एंड यू वेंट टू अ शॉप, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 आइटम है। एक है 20 kg का, एक है 30 kg का, और क्या लिया जाए, 10 का भी ले लेते हैं। ठीक है, 20, 30 एंड 10। ठीक है, सो 10 kg, 20 kg एंड 30 kg। ओके, तुम यू आर सपोज टू बाय दीज प्रोडक्ट्स एंड देन यू विल सेल समवेयर। ओके, एंड यू विल गेट सम प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स कॉल दैट प्रॉफिट एज वैल्यू। सो 10 kg वाले आइटम की वैल्यू है लेट्स से 60। If you'll sell it, you'll get a profit of 60. Value of this product is 100 and value of this product is 120. Okay, now choose the products. Okay, let's call it product number 1, product 2, product 3. इसमें in this knapsack which products can I fill to get maximum value? बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस बैग में? यू कैनॉट कीप ऑल 3 प्रोडक्ट्स। ओके, क्योंकि टोटल हो जाएगा 60 kg, दैट इज नॉट द कैपेसिटी ऑफ knapsack। 50 kg ज्यादा नहीं कर सकते। 01 का मतलब क्या है यहाँ पे? 01 मीन्स आइदर यू चूज द प्रोडक्ट और यू लीव द प्रोडक्ट। ये नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट को तोड़ दिया, आधा प्रोडक्ट ले लिया आधा छोड़ दिया। ओके, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट टेक फ्रैक्शन, यू आइदर टेक इट 1 या फिर लीव इट 0। ओके, सो बताओ गाइस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस बैग में? बताओ कानू, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? समझ में आ रहा है?
जी सर, समझ में तो आ रहा है। आई मीन हिट एंड ट्राई करो ना, यू कैन जस्ट पुट वन बाय वन, सीरियली चलते हैं, ठीक है। तो 10 kg वाला अगर मैं रखूंगा तो इस नैपसैक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 10 kg वाला प्रोडक्ट मैंने रख दिया, तो 40 अब ये अब 40 बचा, ओके। लेट्स से अब 40 बचा है तो आई कैन टेक दिस आल्सो ना 20, लेट्स टेक द 21 नाउ। 40 में से 20 ऑक्यूपाई कर लिया, तब कितना बचेगा 20। रिमेनिंग? 20। कैन आई पुट दिस प्रोडक्ट ओवर हियर? नो। नो, बिकॉज दिस इज 30 kg बट अवेलेबल स्पेस इज ओनली 20 kg। सो अभी कितनी वैल्यू है स्नैपसैक की? 10 kg और 20 kg मैंने खरीदा, ओके। सो 160। वैल्यू इज 60 प्लस 100, 160 है इसकी वैल्यू राइट नाउ। लेट्स ट्राई सम अदर कॉम्बिनेशन, ठीक है। 10 एंड 20 की जगह लेट्स से आई एम टेकिंग 10 एंड 30, 10 लिया एंड 30 लिया। सो नाउ हाउ मच कैपेसिटी इज रिमेनिंग? 10, ओके। 50 टोटल है, उसमें से 30 प्लस 10 40 यूज कर लिया, 50 में से 40 यूज कर लिया, सो 10 kg इज रिमेनिंग। एंड आपने चूज किया प्रोडक्ट ये वाला एंड 30 वाला। कैन यू पुट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो इन द बैग? नो, बिकॉज दिस हैज हायर कैपेसिटी, 20 kg अवेलेबल ही नहीं थी, यू कैन नॉट। सो अब इसके लिए वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस थिंग? 180। 60 प्लस 120 दैट इज 180। तो वैल्यू बढ़ गई है ना। नाउ एक और कॉम्बिनेशन लेट्स ट्राई। सो 20 देयर आर 30 का लेंगे। there are 3 objects and you are supposed to choose 2. So there are actually 3 combinations that you can choose, okay? Either you take 1 and 2 या फिर 1 and 3 या फिर 2 and 3, okay? 1 and 2, 1 and 3 देख लिया, let's see 2 and 3 now. So if I take 2, 2 means 20 kg with a value of 100, okay? ये ले लिया. Now let's take 3. If I take 3, this is 30 kg and value is 120. Value is 120. कितना रिमेनिंग बचा? 0। 0, 0 kg रिमेनिंग। 30 प्लस 20, 50 kg आपने सामान ले लिया, 50 kg कैपेसिटी थी, तो दिस नैपसैक कैन नॉट होल्ड एनी मोर प्रोडक्ट्स। तो टोटल वैल्यू अब कितनी है? 220। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन गेट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ना। जी। सो ठीक है, एनीबडी हैज एनी इशू इन दिस क्वेश्चन? समझ में आया कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। नाउ कैसे करनी है विल सी, डोंट वरी अबाउट दैट। वी आर सपोज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। बताओ गाइस, व्हाट डू यू थिंक, क्या किया जाए? सर वही 2 पॉइंटर अप्रोच वाला देखेंगे कैसे? कि एक पॉइंटर 1 पे लेंगे, एक पॉइंटर 2 पे लेंगे। फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। 50 kg होने तक उसको उसमें ऐड करते जाएंगे। ओके, फिर नहीं हुआ तो नेक्स्ट पॉइंटर मूव कर देंगे। इसको मूव कर देंगे जब तक एंड नहीं हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद P1 को आगे बढ़ाएंगे और फिर ऐसे P2 को नेक्स्ट रखेंगे। तो दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए P1 यहाँ रख, तो पहले चलो ठीक है, लेट्स नॉट रन वेरी फास्ट।
if I'm keeping one pointer here and one pointer here, okay, because everything eventually will be inside an array, so I can use a pointer. So if I keep one pointer here, one pointer here, यानी कि I'm using 1, 2, this combination. इसकी value थी 160. Okay, I'll move the pointer to next. Okay, तो यानी कि 1, 3, इसकी value थी 180. Okay, अगर और element होते, if there were more elements, I would have moved the second pointer even further. ठीक है, फिर 1 और 4 का देखते कॉम्बिनेशन, बट 1 और 4 तो है ही नहीं, तो लेट इट बी. तो 1 का काम खत्म हो गया. ओके, नाउ लेट्स सी if I move the pointer 1 over here to the point 2. Now pointer 2 will be over here. 2 and 3. 2 and 3 are 220. Okay, and if there are more elements, तब P2 को आगे बढ़ाते. और so eventually let's say अगर n products हैं तुम्हारे पास, okay, product number 1, product number 2, product number 3, product number 4, product number 5 and 6 लेके n तक, P1 को यहाँ फिक्स करते पहले, एंड देन P2 को पहले यहाँ रखते, फिर P2 को यहाँ रखते, फिर P2 को यहाँ रखते, then P2 would have been here, then P2 would have been here, then eventually, so there would have been like n combinations for this. Okay, and when the whole list is traversed, then I'll store the value of each combination somewhere, okay, in some array or something. For when I fixed P1 and moved P2 till here, I saw the values. Now I'll move the P1 forward over here, and then I'll move P2 over here. I'll see 2, 3, then I'll move P2 over here, and then I'll move P2 over here. There is an issue with this problem. ये करेंगे अपन n तक. Okay, similarly फिर next time P1 को यहाँ रखेंगे, फिर P2 को move करेंगे end तक, फिर P1 को यहाँ रखेंगे, फिर P2 को move करेंगे end तक, then P1 over here and then P2 till the end, then P1 over here and P2 till the end. We'll keep on doing this thing, but the problem is effectively what you are doing is, again you are doing, either you are taking the product number 1 or you are leaving it. वही कर रहे हो ना? बताओ. जी सर, जी सर. Either you are taking it or leaving it. Okay, so for each product there is an option that either you'll take it or you'll leave it. For this guy, either you take it or leave it, take it or leave it. So if there are n products, this question becomes order of 2 to the power n. Okay, this is a brute force approach. What I can do nothing. सोचते नहीं, ठीक है. Let's write the brute force algorithm. देखते हैं क्या होगा. Okay, so तुम में से कोई वो यूज करता है sublime text? नहीं सर, VS कोड पे ही चला रहा है. अच्छा है वो भी यार, मुझे पता ही नहीं था you can run Python files inside the sublime text. ये नहीं पता था मेरे को, आज ही पता चला. Okay, what is the problem? 0, 1 knapsack. Let's call it 0, 1 knapsack. Okay, dot py. Cool. So what I'm going to do, let's create a value वाली list. Okay, for each element. Element number 1, 2, 3 की जगह let's call it 0, 1, 2. ठीक है, क्योंकि array है, it's a list. The value of the first box, let's say, is 60. The second box is 100. The third box is 120. Okay. Weight of each box. Let's say the first box is 10 kg, second is 20 kg, the third is 30 kg. Okay. Let's denote the total capacity of knapsack as capital W. Let's say this is 50 kg. ठीक है. I'll find the number of items total. Okay, length of weight matrix ले लो या value matrix ले लो. Okay, it will tell you how many items are there.
I'll write a function called knapsack. In that function, I'll pass the total capacity of the knapsack, the weight list, the value list, and the total number of objects. Okay, whatever it will return, I'll catch it into a variable called result, and then I'll print the value of result. Okay. So what is left? Writing the function knapsack. Define the function knapsack. अभी मैंने code start नहीं किया है. Guys, the question is clear now. I'm supposed to find a combination of these products so that the total weight of the products should be either less than 50 or equal to 50. Okay? I cannot go beyond the capacity of the knapsack. Okay. And what I want is the maximum value that I can get from this knapsack. Okay. By keeping those products, whatever I keep product, each product will have some value. Cool. So I hope the question is clear enough. If anybody has any confusion, just let me know. I'm seeing the chat. Okay. Nobody's typing anything, but I'm keeping the chat window open. So, up jo hai, because I'm going to write a recursive code. Okay. I need a base condition. So when will my code end? If number of elements, remaining number of elements become 0. Okay. Or the bag capacity becomes 0. When will this happen? If I keep one element, okay? Let's say there were n elements, and from n elements 1, 2, 3, 4, and some, let's say 5. If I keep one element in the bag, now 4 are remaining. Then another one, then 3 is remaining. Eventually, if I keep everything in the bag, okay, if bag is big enough, if everything is over, then I can stop my code now. So that is, so that is one condition. Second one is, while I'm filling my bag, okay, if every time, if there is, the capacity is 50, if I add a product of weight 10, I'll reduce the value of bag's capacity by 50 minus 10, I'll make it 40. Okay. Okay. अगर ऐसे मैंने 4 बैग रख दिए हैं, okay, 4 bags are there and all of them have 10, let's say 5. अगर 50 kgs मैंने full कर दिया, तो now bag's capacity will become 0. And when bag is full, that is the maximum value it can hold. Okay. If W becomes 0, then also I can stop. Okay. If both the cases are true, I can just return 0. There is nothing more you can add. Okay. Now, one thing I need to do, should I sort it out? I'm thinking. चलो ठीक है, sort करने की जरूरत नहीं. Let's take each element one by one and see whatever value I get. Let's start from the right side. ठीक है. These are the products, okay, with weight 10 kg, 20 kg, and 30 kg. So, if the weight of the last element, okay, this 30 kg, okay, if this thing is greater than the total capacity of the knapsack, can I include it inside the knapsack or not? बताओ. If the weight of the last item in this list, नहीं, उसको exclude करना. If it is greater than the total capacity, तो अपन उसको नहीं रख पाएंगे बैग. So I'll have to ignore it. So what I will do, I will stop the function over here, okay, and I'll call the knapsack function again. But this, अरे ये सब तो मैंने copy नहीं किया. Example, the parameters. These were the default parameters. Okay. So, because I do not want to talk about that product anymore, because that thing I cannot include क्योंकि उसका weight total capacity से ज़्यादा है. So I'll just ignore that thing now. ठीक है? n-1. I cannot take that product, so I'm not going to take that product. The value list will not change, the weight list will not change, and the total capacity of the knapsack will not change because I'm not adding anything. So
नैपसैक की कैपेसिटी अभी भी W ही है। ओके, सो इफ इट इज नॉट ट्रू तो यहां पे क्या करना है? ओके, वन थिंग यू कैन डू, इफ इट इज नॉट ट्रू, आइदर आई विल इंक्लूड इट और आई विल नॉट इंक्लूड इट। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम माई वैल्यू लिस्ट n-1, ओके, ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। इफ आई एड दैट एलिमेंट इनसाइड माई knapsack, so this will be the value of knapsack then, है ना? बताओ, आगे बढ़ने से पहले बताओ कानून क्या प्रॉब्लम है? देखो यहाँ समझ पे, में नहीं आया। देखो यहाँ पे इग्नोर कर दिया हमने उस एलिमेंट को, n-1th एलिमेंट को। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक लिस्ट है हमारे पास एलिमेंट्स की। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इससे पहले वाला देखेंगे, फिर इससे पहले वाला, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, एक ही बात है। ओके, पहले ये देखते एलिमेंट, फिर ये देखते, फिर ये देखते। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू थिंग्स, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। सो इस वाले एलिमेंट का अगर वेट, जो लास्ट एलिमेंट है, इसका वेट 50 से ज्यादा है, सो इसको बैक में नहीं रख पाएंगे ना? नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएंगे, तो इसको इग्नोर कर दिया मैंने। दोबारा knapsack फंक्शन को कॉल किया और उस एलिमेंट को हटा दिया। पहले n एलिमेंट थे, अब n-1 है। ये क्लियर है? जी। ठीक है, नाउ अगर इसका वेट ज्यादा है, अगर उसका वेट कम है, तो दो चीज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं उसका वेट, मतलब knapsack में इंक्लूड करके, ठीक है, इसको knapsack में डालते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू होती है। दूसरी टाइम हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि हमने इसको knapsack में नहीं डाला और बाकी प्रोडक्ट्स डाले, तब क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो n-1th एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये है ना, अगर बैक में इंक्लूड कर लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी बैक की, है ना? ठीक है, हमने इंक्लूड कर लिया उसको बैक। अब क्या करना है, आप ये knapsack वाला फंक्शन कॉल करना है फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैंने n-1th एलिमेंट इंक्लूड कर लिया तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, लेट्स स्टोर इट इन अ वेरिएबल कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, इसमें अब मैं knapsack कॉल करूंगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द n-1th एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो डिक्लेयर हो गया कि यहाँ पे n-1 लिखूंगा मैं, आखिरी पैरामीटर w, वेट, वैल्यू, लास्ट वाला n-1 होगा। ठीक है, एंड वैल्यू वाली लिस्ट तो चेंज होगी नहीं, तुम कुछ कर लो। ओके, लिस्ट तो अपन एडिट कर नहीं रहे, तो वेट और वैल्यू सेम रहेगा। अब ये बताओ, w की वैल्यू चेंज होगी knapsack की कैपेसिटी की? हाँ, अगर वैल्यू हमने इंक्लूड कर ली है तो वो तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो टोटल वेट था w, अब इसमें से अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो भी वेट था n-1 एलिमेंट का, है ना? ये समझ में आया? ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 50 kg थी, अगर इस एलिमेंट का वेट था 30 kg तो हमने रिड्यूस कर दिया, तो ये अब 20 kg है ये वैल्यू। ओके, तो जब ये knapsack फंक्शन कॉल करेंगे तब 20 kg के लिए सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट आखिरी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? क्योंकि उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वन थिंग आई कैन ऑल्सो डू ओवर हियर, कॉमा डाल के एक और चीज कर सकता हूं मैं, आई कैन एक्सक्लूड दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द knapsack ऑल्सो। ठीक है, वो कैसे? अगर हम उसको नहीं ले रहे हैं तब वैल्यू क्या होगी? इफ आई इग्नोर दिस वन n-1 एलिमेंट, ठीक है, तब यानी कि इफ आई इग्नोर इट तो सेम चीज होगी ना जो यहाँ पे किया था, यहाँ पे तो इग्नोर ही कर रहे थे। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज है ना, वेट चेंज हुआ knapsack का, वेट और वैल्यू लिस्ट तो चेंज ही नहीं होगी कहीं, और n-1th एलिमेंट हटा दिया हमने। ठीक है, सो
दिस इज फॉर दैट थिंग, क्या कहते हैं, व्हेन आई एम नॉट टेकिंग द प्रोडक्ट, ओके, और दिस इज व्हेन आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट, ओके। अब इन दोनों में से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देख लूं, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बताओ। ये समझ में आया क्या किया मैंने? एक बार मैंने उसे ले एक लिया बार इंक्लूड नैपसैक में, किए और और एक एक बार, बार उसको निकाल दिए, हाँ, उसका फिर मैक्सिमम निकालेंगे। इसमें से मैंने दोनों में देखा किस में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, जो भी मैक्सिमम मिल रही है वही मेरी वैल्यू है, ठीक है। और इन द एंड इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न द वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। ये भी कर सकते हो, तो अगर चाहो तो यहीं पे रिटर्न मार सकते हो, रिटर्न दिस ओनली, एक वेरिएबल भी क्यों वेस्ट करे आदमी, ठीक है। ये हो गया रिकर्सिव अप्रोच, ओके। सो इफ आई रन दिस कोड, दिस शुड गिव मी एन आउटपुट ऑफ, जो हमने कैलकुलेट किया था अपने एग्जांपल में, 220। कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ यार, अरे सब बर्बाद हो गया। व्हाट इज दिस? 220, okay. So my code is working now. Like I've told you, because you have यहाँ पे two choices, okay. You have two choices, either you are taking a product or you are leaving a product. So for each product you have two choices, the total 2 to the power n choices are there. So what will the time complexity of this code? बताओ people, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस कोड की? देखो, हर फंक्शन कॉल किसी के अंदर लूप नहीं है, ठीक है। तो हर फंक्शन कॉल ऑर्डर ऑफ वन टाइम है, बट देखना है टोटल फंक्शन कॉल कितने हैं, एक बार वो देखते हैं। गाइस टेल मी वन थिंग, विल यू 11 के बाद थोड़ी देर बैठना है, 5-10 मिनट, बिकॉज वी स्टार्टेड हाफ एन आवर लेट। वाओ, अभी मैंने अटेंडेंस देखा, 11 के बाद छोड़ो, 11:15 पे 4 लोग बचे हैं। सिर्फ 11 तक चल जाए तब बहुत बड़ी बात हो जाए। अरे यार क्यों, बता के जाके रहे लोग। चलो ठीक है, अगली नेक्स्ट बैच में कम से कम लोग बिफोर हैंड पैसे दे रहे हैं तो वो बिना पूछे नहीं जाएंगे बच्चे, प्रीटी श्योर अबाउट दैट। यहाँ पे अभी रियलाइज नहीं हो रहा ना, पैसा तो तुम्हें भी देना ही पड़ेगा। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, तो फॉर ईच प्रोडक्ट आई हैड टू चॉइसेस, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय knapsack प्रॉब्लम, आई हैव n items and w is the capacity, ठीक है। तो अब इसको ठीक है, w मैंने बहुत छोटा लेते हैं, चलो 3 आइटम है, लेट्स से 2 kgs कैपेसिटी है उसकी, ओके। व्हाट यू कैन डू, आई कैन आइदर यू कैन इंक्लूड वन ऑब्जेक्ट और यू कैन एक्सक्लूड वन, ठीक है। सो इन knapsack नाउ इफ आई लीव इट, अगर इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, अगर इग्नोर करते हैं, ठीक है, इफ आई एम लीविंग इट, then now there are not 3 items, there are 2 items, but the capacity doesn't change, ठीक है। 2 की जगह 50 लिखना चाहिए था, ओके। बट और अगर इंक्लूड कर लेते हो तो 3 की जगह 2 हो जाएगा, अभी भी नाउ आई एम गोइंग टू सी अदर आइटम्स अदर देन द वन दैट आई चोज ओवर हियर, बट w चेंज हो जाएगा, ओके। वेट विल रिड्यूस, आई एम सेइंग हर आइटम का वेट 1 kg है, ठीक है। तो 2 kg टोटल कैपेसिटी है,
तो अगर उसे इग्नोर कर देंगे तो कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कूल। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक प्रोडक्ट या तो तुम ले लो, इफ यू आर इग्नोरिंग इट देन कैपेसिटी विल नॉट चेंज, इफ यू आर नॉट इग्नोरिंग इट, आई मीन सॉरी, इफ यू आर इग्नोरिंग इट एंड इफ यू आर नॉट इग्नोरिंग, तब कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली ओवर हियर आइदर यू इग्नोर इट तो कैपेसिटी 0 हो जाएगी, या फिर सॉरी इग्नोर करेंगे तब क्यों, इग्नोर करेंगे तो कैपेसिटी वही रहेगी, और अगर इग्नोर नहीं करोगे तो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, एंड 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स हर लाइन पे चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले 3 आइटम थे, एक सेलेक्ट कर लिया तो 2 बचे, 2 में से एक सेलेक्ट कर लिया तो 1 बचा। ओके, एंड आफ्टर दैट फर्दर डाउन फॉर द लास्ट आइटम ऑल्सो यू कैन टेक द डिसीजन सिमिलर वे। उस आइटम को या तो तुम नहीं लोगे तो कैपेसिटी नहीं चेंज होगी, या तो फिर ले लोगे तो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। उस आइटम को या तो नहीं लोगे तो कैपेसिटी नहीं चेंज होगी, या तो उस आइटम को ले लोगे तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रिड्यूस हो गई। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इग्नोर करो या फिर रिड्यूस करो, 2 चीज़ कर सकते हैं। 1 की जगह यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तुम इग्नोर करो इंक्लूड करो ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इग्नोर करना 0 ही 0 पड़ेगा। ही है। यहाँ पे तुम्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी 1 आइटम एंड 1, चलो ठीक है, क्या बोल रहा था। तो हर लेयर पे ऑलमोस्ट 2 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे एंड एवरी फंक्शन कॉल डजंट हैव एनी लूप, तो हर एक फंक्शन कॉल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, पर टोटल कितने फंक्शन कॉल हैं, 2 टू द पावर n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n इनटू ऑर्डर ऑफ ईच फंक्शन कॉल ऑर्डर ऑफ 1, दिस इज एक्सपोनेंशियल। कुछ याद है कानू, इसको कैसे डीपी बनाया जाए, बताओ, याद है कुछ? कुछ नहीं सर। डीपी में क्या करते थे, कोई भी वैल्यू जब पहली बार कैलकुलेट कर रहे होते थे उसको स्टोर कर लेते थे ताकि उसको फ्यूचर में यूज कर पहले सके। पहले कोई एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेना। हाँ, तो सबसे पहले डीपी के लिए अपन एक वो बनाते हैं, सबसे पहले एक 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। 2 डायमेंशनल एरे से मेरा मतलब है एक मैट्रिक्स बनाते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ओके, इससे ये वाली, और इसमें अपन भर देंगे -1। ठीक है, 0 भी भर सकते हो बट लेट्स से -1, -1 फॉर I in range W+1। ओके, एंड W तो यहाँ पे है नहीं, नीचे कर देंगे, कोई बात नहीं। एंड रिपीट द सेम थिंग, ये एक रो बना दी मल्टीपल रोज के लिए फॉर J I और J लेने की जरूरत थी नहीं, बट N+1। ओके, अब ये दोनों डिक्लेयर तो है नहीं, ये है क्या, व्हाट आई डू इज ये 3 लाइन को मैं ऊपर भेज देता हूँ, बिकॉज पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ग्लोबल करते ग्लोबल तो है ही, बट एन एन को लीजिए। एन कहाँ है, ये ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को वैल्यू स्टोर करनी है और देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी वेट चेक करने से पहले कि वो उसके अंदर है कि नहीं है, ये सब से पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इफ इन माय डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स अगर आइटम n और वेट w इसके लिए कोई एंट्री -1 है, मतलब -1 नहीं है, यानी कि हम इसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन रिटर्न कर देंगे सीधे, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे। ओके, अब अगर ये नहीं है कि वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट नहीं की, हम पहली बार अभी आए हैं कैलकुलेट करने, तब अपन यहाँ पे आते हैं कैलकुलेट करने। नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज इफ दिस इज एलिफ में जाएगा ना, ये नहीं एलिफ नहीं, इफ ही रहने दो।
इफ दिस इज ग्रेटर देन दैट नैपसैक ये कॉल कर देंगे, अदरवाइज अपन इसको कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न करने की जगह इसको स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। इन दिस मैट्रिक्स एट द पोजीशन n एंड द पोजीशन w, इसको अपन स्टोर कर लेंगे। ओके इस दोनों का वैल्यू, हाँ हाँ, इन मैक्सिमम दोनों वैल्यू जो कॉम्बिनेशन आएगा का कि टोटल अगर n एलिमेंट्स है और कैपेसिटी w है, डब्ल्यू तो है। जो भी वैल्यू मिलेगा अपन वहां पे स्टोर कर लेंगे। ओके एंड in the end I can return this thing. After calculating I can return this. Okay, और अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो अपन जीरो भरे वहां पे, जस्ट सोच रहा हूं मैं, जीरो ना भरे। अगर n की वैल्यू n-1, मतलब उस एलिमेंट का वेट कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसको भी स्टोर कर दो, क्योंकि n को इग्नोर ही कर रहे हो तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। ओके बस हो गया कोड रिकर्जन से आगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कोड अभी भी सेम है, 222 अभी वैल्यू आ रही तो 20, है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से काफी चेंज हो गई। ओके, टू द पावर n की जगह अपन अब कहाँ आ गए, ऑर्डर ऑफ 1 में आ गए। 1 नहीं है, क्योंकि रिकर्जन तो अभी भी हो रहा है, ठीक है, बट बहुत सारे फंक्शन कॉल रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं, ओके देखो बहुत नीचे भी देखोगे तो ये फंक्शन कॉल सेम है इस फंक्शन कॉल के, सेम है इस फंक्शन कॉल के, और फिर ये वाली फंक्शन कॉल सेम है इस वाली फंक्शन कॉल के, और इसके थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आए तो यहाँ पे भी 1 1 है और ये भी 1 1 है ना। ओके तो ये होल ट्री एक बार अगर कैलकुलेट कर लिया है तो दोबारा नहीं करना है। ओके डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेंगे, जब k11 आएगा अपने पास पहली बार कैलकुलेट करेंगे बेस तक जाकर, ओके, और फिर इसको कहीं पे, फर्स्ट टाइम तो पूरा जाएगा। हाँ फर्स्ट टाइम पूरा जाएगा, फिर इसे कहीं स्टोर कर लेगा किसी वेरिएबल। नेक्स्ट टाइम जब ये k11 देखेगा देन इट विल नॉट गो एनीथिंग डाउन, बस मैट्रिक्स में से रीड कर लेगा जो भी वैल्यू है उस वेरिएबल की, वही रिटर्न कर देगा, वैर वैल्यू रिटर्न कर देगा। पहली बार तो स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं जब n और w, अभी तो यहाँ पे 3 और 2 है, बहुत छोटी वैल्यूज है, जब n एंड w बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, 50 वैल्यूज एंड 50 वेट, तब ये 2 to the power 50 हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ओके और तब बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज ओवरलैप करेंगे, ठीक है। एक बार तो तुम्हें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो तुम्हें उतनी बार कैलकुलेट करना है ना जितनी बड़ी तुम्हारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली मैट्रिक्स है। कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनाई है मैंने, n/w की मैट्रिक्स बनाई है, और इसके हर एक सेल को फिल करने के लिए, सब पहले तो मैं -1 कर दिया सबको, और इसके हर एक सेल को फिल करने के लिए you'll have to call a function। ओके तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n into w होगी, तब अलग पहले, अलग वैल्यू आएगा। हाँ क्या करो, हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग, पहले था ये ब्रूट बोला फोर्स, सर पहले जो -1 लिए थे, हाँ तो क्योंकि उसके बाद -1 तो हम कहीं उसका ऑप्शन नहीं है। वैल्यू चेंज करके फिलअप कर रहे हैं। हाँ ओके अगर मेरे को मिलता है 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड 50 kg है कैपेसिटी, तो मैं रो नंबर 3 में जाऊंगा, कॉलम नंबर 50 में जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ -1 है यानी कि अभी तक मैंने इसे कैलकुलेट नहीं किया है, ओके मैं जाके कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट करके चलो मुझे कोई वैल्यू मिल गई, लेट्स से 200, तो मैं यहाँ -1 हटा के 200 लिख दूंगा, ठीक है। अब मानो मैं आगे कुछ सॉल्व कर रहा था, 4 और 75 के लिए मैं सॉल्व कर रहा था, इस फंक्शन कॉल के अंदर 4 और 75 के लिए k4 and 75 कहीं पे ये आ गया 3,50, ओके। अब ये जैसे ही आएगा मैं फिर से 3 and 50 पे देखूंगा, अब यहाँ पे -1 नहीं है, अब यहाँ पे क्या है 200, तो अगर -1 नहीं है दैट मीन्स मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू, तो तो इस फंक्शन डायरेक्ट कॉल को, वैल्यू रिटर्न कर लेगा। हाँ इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, अंदर मत जाओ, यहीं से रिटर्न कर दो कि वैल्यू है 200। ओके दिस इज हाउ वी सेव टाइम इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कूल, चलो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ना, 01 नैपसैक प्रॉब्लम। ओके मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ,
अटेंडेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्या कहते हो? जी सर। ठीक है। 2 MCQ काफी होना चाहिए, तुम्ही ने बताया था लास्ट टाइम। ओके यार, बहुत जल्दी चले गए यार बच्चे, ये कौन सी बात है, आधा घंटा लेट आया, भाग गए पीछे। डीएसए देखना ही नहीं चाहते हैं आजकल कुछ, याद नहीं आती यार डीएसए की तुम लोग को। सर आपने एक्स्ट्रा क्लास ही क्रिएट किए थे ना, हाँ तो क्रिएट हो जाना चाहिए। जो ये देता हूँ, अरे ये क्या लिख दिया सर। कॉपी, I'm creating the attendance now. Attendance has been created. Okay. रिसोर्स डाल देता हूँ मैं 01 abstract। एक और चीज का रिसोर्स डाला मैं, फ्रैक्शनल लैब साइड देख लेना, दैट इज ग्रीडी एल्गोरिथम। Oh boy. फ्रैक्शनल लैब साइड, चलो मैंने सेशन भी जो बनाया है वो यही वाला एक्स्ट्रा क्लास, कहीं कहीं से देख के बता नहीं सकता, एक्स्ट्रा क्लास ही बताया बनाया था, बट बीच में हॉच पॉच बहुत हो रहा था, आई कुड हैव गॉटन कंफ्यूज में बहुत जल्दी हो अब गया। अभी देखिए सर, कोई है भी नहीं, अटेंडेंस कितना लगता है अटेंडेंस कौन मारेगा? देखिए, बहुत सारे हाँ, लगाएंगे। 2% अटेंडेंस, 2% 0 हो गई। अच्छा ये दूसरा बैच है। भागा। nobody's marking। चलो जो भी है, लेक्चर रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो जाएगी, बच्चे वहां से देख लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके हाँ, इस बैच में पहला और आखिरी क्लास है शायद मेरा। ओके गाइस, बताओ एंड करें लेक्चर? ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा लोग बचे, शिवा प्रसाद एंड कानू, ओनली 2 पीपल। शिवा प्रसाद भाई साहब को तो हिंदी आता नहीं होगा। हाँ, व्हाई डिडंट ही से एनीथिंग? आई डोंट नो, वो शायद ऐसे ही ज्वाइन करके छोड़ दिए। आई डोंट नो, मे बी। We ना little ना, bit understand Basar, but don't know how to speak. you don't like, what is your mother tongue? Telugu, sir. Telugu. तेलुगु। I don't speak Telugu, I'm in Hyderabad right now. I'm teaching from Hyderabad only, in Bonpelli area, Secunderabad. Yes, So you don't speak but you understand, no? yes, sir. Achal, cool. I hope so. If there is some difficulty, you can like watch the lecture again. You can ask my number from other students, okay? If you have any Okay. issue anywhere in No, future sir. also. Okay, Okay? sir. Thank you, sir. శివ, Okay, bro. అర్థమైందనా లేదానా? సార్ నంబర్ వచ్చింది మీ దగ్గరే. Okay. Kanu, how you know this Telugu? Because I'm in South Odisha, sir. For some reason Very I near, very near to for, Andhra Pradesh. for some reason I always thought that you are from UP. पता नहीं क्यों, क्यों सर ऐसा? पता नहीं, तुमसे बात करता हूँ ना, यूपी वाले बात करते हैं मुझसे मोस्टली, अच्छा। मे बी। तो आई थॉट कि तुम पता नहीं कि सब यूपी वाले ही थे, दिल्ली या यूपी वाले बात करते हैं। ओके ओके, इनफ चिट चैट। ओके ओके, चलेगा इससे सर, पहले ओके क्लास तो लेट्स एंड एंड हो गया है अभी। एंड करते हैं अब। ओके, Yes, sir. काफी ठीक है हाफ सर, एन आवर थैंक यू। लॉस्ट। ओके ब्रो, चलो बाय गाइस, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक यू।